السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بار ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں اور اس سے اعلیٰ حضرت میں مولانا ناظم رضا منظری کا بہت ہی پیارا بیان۔ ہاں دوستو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو عرس اعلیٰ حضرت 107واں عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ عرس رضوی تو عرس رضوی کے موقع پہ بہت ہی پیارا ویڈیو ہے، تو ویڈیو پورا دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی کو یہ سید ہیں۔ اعلیٰ حضرت خوشبو سے پہچان لیتے تھے یہ سید ہیں، اور جب پہچان لیا کرتے تھے امام عشق و محبت اپنے سر کا تاج اتار کے ایک عام سید زادے کے قدموں میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق رسول تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی سیدوں سے محبت تھی، تبھی تو پوری دنیا آج کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ امام نے قلم اٹھایا، اللہ اکبر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، دن ہو بھلے بیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے۔ آج پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، آج اللہ اکبر کبیرہ دنیا ہمارے پیچھے لگی ہے، ہمیں مٹانے پہ تلی ہے، ہماری پستی میں جانے کی وجہ یہ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ سبو حالے کی وجہ یہ ہے ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے دلوں میں عشق رسول لگی ہے۔ کاش اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جیسا عشق رسول پیدا ہو جائے۔ آپ کہو گے کیسا تھا ان کے عشق رسول؟ تو سنو، آپ کہتے تھے اعلیٰ حضرت میرے سینے کے دو ٹکڑے کیے جائیں، دل نکالا جائے، دل کو دو بھاگوں میں بانٹا جائے، دل کے ایک ٹکڑے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ملے گا اور دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بے شک، پیسہ نہیں، ہماری پاور کا نام بڑا مکان نہیں، ہماری دولت کا نام، ہمارا سرمایہ کھیتی نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہارا سرمایہ بلڈنگ نہیں ہے، تمہارا سرمایہ پیسہ نہیں ہے، اگر تمہارا سرمایہ ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ نبی سے محبت کرو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے، دنیا میں رہو گے دنیا میں چمکو گے، دنیا سے جاؤ گے تمہاری قبریں چمکیں گی۔ آج دل پہ یہ بات گندا کر کے جانا، ہمارا اثاثہ ہمارا سرمایہ اگر ہے تو نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کی آل سے محبت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا انداز ہے حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کون سا اثاثہ؟ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہی بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک پیغام سید فیصل میاں صاحب کی طرف سے، آج حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اس مبارک عرس سے کچھ پیغام جانا چاہیے۔ وہ پیغام یہ ہے، بہت کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے کے شریک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے یہاں چھوت اچھوت نہیں ہے، ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو، یہ مطلب کیا ہے، زبانی فائرنگ بند کرو، تم عملی میدان میں بالکل پیچھے ہو۔ اللہ کی قسم تم بات کرتے ہو، تمہارا
तुम्हारा इत्तेहाद सिर्फ मस्जिदों तक नजर आता है। जब तुम इमाम साहब के पीछे खड़े होते हो तो डॉक्टर इकबाल का ये शेर सादिक आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जैसे ही तुम मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए, तुम मस्जिद से बाहर आए, तुमने बिरादरी बात शुरू कर दिया, तुमने परिवार बात शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स ऐसा है उसने पूरी जिंदगी हजरात खिदमत खल्क में लगा दी, गरीबों की सेवा में लगा दी, गरीबों की खिदमतों में लगा दी। रात को भी मेहनत करता है, दिन में भी मेहनत करता है। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की झलक उसमें नजर आती है। कौन फारूक आजम? जब पूरा मदीना सोता था, उमर बिन खत्ताब आधी दुनिया के बादशाह, आधी दुनिया के हुक्मरान रात में गश्त करने जाते थे। कोई भूखा मिलता था खाने खिलाते थे, कोई प्यासा मिलता था पानी पिलाते थे। एक दरवाजा खुला हुआ, अल्लाह अकबर, खादिम अंदर पहुंचा, जाकर क्या देखा? औरत कह रही है मैं कुछ नहीं कर रही, उमर को कोस रही हूँ। आधी दुनिया का बादशाह जरूर है, मेरे शोहर एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को भूख लगी है, घर में बनाने के लिए कुछ नहीं। मैंने पतीली में पानी और उसमें अल्लाह अकबर पत्थर डाल दिए। बच्चों से कह रही हूँ अभी खाना बना नहीं, बनेगा तैयार होगा तो खिलाऊंगी। लेकिन आज बच्चों को भूख इस मंजिल पे पहुंची है, बच्चों को भूख तड़पा रही है, बच्चों को भूख सोने भी नहीं देती। मैं उमर को कोस रही हूँ। खादिम ने आकर के बताया, उमर ने राशन लिया, कांधे पे रखा, गरीब औरत के घर लेकर के आए, खाना तैयार हुआ, अपने हाथों से छोटे छोटे लुकमे बना करके। कौन है? किसी शहर का विधायक नहीं, किसी एक लोकसभा के एमपी नहीं, अल्लाह की कसम कोई सीएम प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सादगी देखो, आजिज़ी देखो, ये मुसलमान है, इसका भाई भूखा मर रहा है, भाई की फिक्र नहीं है, इसकी भतीजी जवान है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी भतीजी जो है ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसकी भतीजी यतीम है, जवान है, बालों में चांदी उतर आई, लेकिन चचा को गैरत नहीं आती, ताया को शर्म नहीं आती कि अपनी भतीजी के हाथ लाल पीले कर दे, इज्जत से निकाह कर दे। ये मुसलमान है, ये कहते हम एक दूसरे से मोहब्बत करते। ना ना ना, तुम मोहब्बत नहीं करते। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलो, ये उमर बिन खत्ताब फारूक आजम है। अल्लाह की कसम, खाना खिला करके फारिग हुए, कहने लगे बहन उमर को माफ कर दे। औरत ने कहा था, बेवा ने कहा था, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे, आधी दुनिया का हुक्मरान बना दे। वो उमर को जानती नहीं थी यही उमर है जब मेरे बच्चों को खाना खिला रहा। उमर रोए, आंखों से आंसू निकले, उस औरत से कहने लगे ओ बहन उमर को माफ कर दे, जितना कोसना उतना कोस ले। औरत कहने लगी उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है, कौन सा कनेक्शन है, बड़े उमर की हिमायती बन रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर ने कहा था ओ बहन जिस उमर से तेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ है, जिस उमर को तू कोस रही है ना, वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उस औरत ने कहा था अगर तू उमर है तो मुझे माफ कर दे। क्या बात है बेशक। तुम्हारी तारीख, ये तुम्हारी तारीख है। आज अल्लाह तुम्हें थोड़ा सा ओहदा दे दे, तुम कुछ बनो या ना बनो, लेकिन पुलिस के दलाल जरूर बन जाते हो। आज ये हालात है तुम्हारी, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी नारे तकबीर, सही बात है बेशक। सैयद माजिद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुवाहिदी शाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान के माया नाज खतीब और सादात किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है इंशाअल्लाह। तो बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से शुरू करनी कहाँ ख़त्म करनी है। ये हुज़ूर सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला की मकबूलियत है। आप ये ना समझें कि ये अवाम के अंदर मकबूलियत पाए हुए हैं। अवाम व खवास दोनों के दरमियान कितनी मकबूलियत है इस सैयदजादे की। एक फ़ोन पे देखें, हिंदुस्तान का वो मायानाज़ खतीब हज़रत अल्लामा तौसीफ़ साहब क़िबला मिसबाही वो जलवागर है, तशरीफ़ ले आए। नक़ीबुल हिंद हज़रत क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला संभली वो तशरीफ़ लेकर के आ गए। भाई शान अरब मुरादाबादी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे, वो तशरीफ़ ले आए। सैफुल्लाह सुल्तानी साहब क़िबला संभली बहुत अच्छा पढ़ करके गए, वक्त कम था वो तशरीफ़ लेकर के आए। और दीगर
उलमा मौलाना तारिक साहब क़िबला, अल्लाह सबको सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप अपने आप में इनकलाब लाओ, अपनी हालत को बदलो। खुदा भी नहीं बदलता उस कौम की हालत को जब वो कौम अपनी हालत को खुद से बदलने के लिए तैयार नहीं होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहचानो अपनों में छुपे हुए अल्लाह अकबर मुनाफिकों को पहचानो, अपने में छुपे हुए गद्दारों को पहचानो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। मस्जिदों तक तुम्हारा इत्तेहाद है अपने नियत के पीछे इस इमाम के। लगता है वाकई शेख है, पठान है, तुर्क है, कुरैशी है, अंसारी है, मंसूरी है, सलमानी है, ये सब एक कलमे के शरीक हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकले इन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा, जो 20 साल से इंसान मेहनत कर रहा था, खिदमत खल्क कर रहा था, बेवाओं की देखभाल कर रहा था, यतीम बच्चियों की देखभाल कर रहा था, उसको पीछे डाल दिया। क्यों पीछे डाला? ये बिरादर नहीं है हमारा, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। फिर क्यों कहते हो हम में इत्तेहाद है, हम में छूत अछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है? ओ कसम खुदा की याद रखना, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, चाहे वो कितनी दूर का हो, वो हमारे सरों का ताज है। और जो मोहम्मद अरबी का नहीं, वो कितना ही रिश्तेदार हो, वो हमारा नहीं। जो हुजूर का है वो हमारा है, और जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अपने में छुपे हुए मुनाफिकों को पहचानो, अपने में हज़रात अपनी जमात में हमदर्द तलाश करो, रफीक मिल्लत तलाश करो, अच्छे लोगों को तलाश करो। ये तुमसे किसने कहा कि इमाम का काम खिताबत करना है, इमाम का काम नमाज पढ़ाना है? ये तुम्हें किसने कहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम तुम्हारा सियासी रहनुमा नहीं बन सकता, आलिम तुम्हारी विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकता, आलिम तुम्हारी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकता। ओ कसम खुदा की, जो कुरान वाला है हकीकत में वो तुम्हारा रहनुमा है। सीने में कुरान है, हुजूर का इल्म है, उसे अपना इमाम बनाओ। मस्जिद में भी इमाम रखो, मस्जिद के बाहर भी इमाम रखो। मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपसे कहने आया हूँ, जो मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों सुना आपने मौलाना नाजिम रजा मंजरी का कितना प्यारा बयान था। हाँ दोस्तों, मैंने इनका पहली बार बयान सुना। क्या बयान है हजरत का, इनका बयान सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। क्या दोस्तों, इनका बयान बिल्कुल मुफ्ती हम्माद रजा की जैसा ही है, ऐसे ही मुफ्ती हम्माद रजा भी बयान करते हैं। दोस्तों कितना प्यारा बयान था दोस्तों इनका। ऐसा बयान है कि एक बार सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे, पता नहीं लगा कि कब वीडियो पूरा हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।